Assalamu alaikum and good morning all my dear student. In my last video, I have explained you direct and indirect speech. Now I will explain you how to convert direct speech into indirect speech. Now little bit explanation of the direct and indirect speech. See here, student direct speech means actual words are quoted of speaker as it is. और जो डायरेक्ट स्पीच होती है वो क्या होती है, इनक्लोज होती है इन इन्वर्टेड कॉमास. एंड इनडायरेक्ट स्पीच actual words are transferred of speaker and not enclosed inverted commas. इनडायरेक्ट स्पीच में जो स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स होते हैं वो क्या किए जाते हैं, ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं और इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ नहीं किया जाता. नाउ स्टूडेंट सी स्टेप टू कन्वर्ट अ डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच. Things you should know. You should first clear the concept which are important in converting direct speech to indirect speech. See here, first you should know about subject and object in the sentence. Second, you need to know first person, second person and third person. And third and last, you should know about tense. Now see student, what is a subject and object? There is one example. Sajia said to John. See here, what is a subject and what is a object? Subject means the person who is performing the action, and the object means the person who is receiving the action. In the sentence, Sajia is subject and John is object. Got it? Now see the second concept. First person, second person and third person. For understanding this, you should know about the point of view. For example, see in the picture, there is one boy and two girls. Shayan is talking to Falak about Mehak. Shayan is saying to Falak that Mehak is a very beautiful girl. So in this case, the sentence will be, I am telling you that she is very beautiful. Now Shayan will be the first person because he is telling, and Falak will be the second person because she is listening, and Mehak will be the third person because they are talking about her. For more understanding, this chart will be help you to understand first person, second person and third person. Got it? Now students see the third point, tense. Tense denotes time at which the action performed. टेंस हमको बताता है कि जो एक्शन है वो कौन से वक्त हुआ है. सो यू हैव थ्री टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. इसमें भी आपको 4 टाइप्स मिलेंगी, सिंपल, continuous, perfect and perfect continuous. Now students see the steps to convert a direct speech to indirect speech. See here, you have 6 steps. First, identification means identity. You should know about subject, object, reporting verb, first person, second person, third person and tense. Second step is change of reporting verb. See here how you will change. Said to will be changed told. Said में ही रहेगा. Say to की जगह क्या आएगा, tell.
और सेज टू टेल्स। गॉट इट? आपको ये याद रखना है। अगर डायरेक्ट स्पीच में आपको सेट टू, सेट, सेज टू आता है तो आपको उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके कौन से वर्ड्स यूज़ करना है। थर्ड स्टेप है, आपका जो इन्वर्टेड कॉमा होता है डायरेक्ट स्पीच में, वो आपको रिप्लेस करना है विथ दैट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इन्वर्टेड कॉमा को ख़त्म करना है। नाउ आपकी फोर्थ स्टेप है चेंज ऑफ प्रोनाउन। सी हियर, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन होगा ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन में कोई चेंजेस नहीं होंगे जब आप इनडायरेक्ट स्पीच को बनाओगे डायरेक्ट स्पीच से। गॉट इट? नाउ सी फिफ्थ स्टेप है आपकी चेंज ऑफ टेंस। आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा इज इन पास्ट टेंस में आ जाएगा, और रिपोर्टिंग वर्ब जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है और हैबिट होती है उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। आपको ये ध्यान रखना है। गॉट इट? नाउ सी कैसे टेंसेस में चेंज होते हैं। देयर इज अ चार्ट। प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट चेंज होगा इनटू सिंपल पास्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट होगा पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट टेंस होगा सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंजेस नहीं होंगे, वाइज इट इज ही लिखा जाएगा। फ्यूचर में विल शैल की जगह आपको यूज़ करना है वुड शुड। कैन और मे की जगह आपको यूज़ करना है कुड और माइट। और आपको ध्यान रखना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा वो किस में आएगा, पास्ट टेंस में, और जो यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिट है उस सेंटेंस में, उस टेंस में कोई चेंज नहीं होगी। नाउ स्टूडेंट सी द सिक्स्थ स्टेप। नाउ सी update time specific words. Here will be changed by there. Tomorrow will be the day, the next day, and today will be that day. Yesterday will be the previous day. This will be that, and now will be that, and tonight will be that night. Got it? अगर डायरेक्ट स्पीच में आपको ये वर्ड्स चाहते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कौन से वर्ड यूज़ करने का है ये आपको ध्यान रखना है। So student, let's see the examples according to this word flow chart. See first example. She said to me, I am playing football with you now. ये जो सेंटेंस है वो क्या है, डायरेक्ट स्पीच में है, जिसको हमको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। सो हमको फर्स्ट क्या देखना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, शी, और ऑब्जेक्ट क्या है, मी। फिर उसके बाद देखो आप सेकेंड है, आपको देखना है चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। इस सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड। फिर आपको थर्ड देखना है रिप्लेस इन्वर्टेड कॉमा विथ दैट। आपको इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके उसकी जगह क्या यूज़ करना है, दैट। देन फोर्थ स्टेप है आपको चेंज ऑफ प्रोनाउन। देखो प्रोनाउन क्या है यहाँ पर, आई और यू। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और यू क्या है, सेकंड पर्सन। गॉट इट? नाउ देखियो फिफ्थ स्टेप क्या है, चेंज ऑफ टेंस। यहाँ पे टेंस कौन सा है, एम प्लेइंग। ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब 6 है अपडेट टाइम स्पेसिफिक वर्ड्स। मतलब टाइम के लिए आप कौन से स्पेसिफिक वर्ड्स को यूज़ करोगे। तो
तो यहाँ पर क्या है, टाइम के लिए यूज़ हुआ है नाउ, तो वो चेंज होगा नाउ किस में, देन में। अब देखो कैसे हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं बाय यूजिंग। अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू चेंज होगा टोल्ड से, और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम क्या यूज़ करेंगे, दैट। सो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, शी सेड टू मी दैट। नाउ सी थर्ड हम क्या करेंगे, फोर्थ चेंज ऑफ प्रोनाउन करेंगे। आई की जगह किसका यूज होगा, शी, और यू की जगह मी। गॉट इट। सो यू नो दैट कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। तो एम प्ले की जगह क्या आएगा, वॉज प्लेइंग, एंड नाउ की जगह क्या आएगा, दैट। तो हमारा जो फाइनल सेंटेंस बनेगा वो क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में शी टोल्ड मी दैट शी वॉज प्लेइंग फुटबॉल विथ मी दैन। गॉट इट। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। राम सेड श्याम आई स्टार्टेड अ न्यू जॉब। सो फर्स्ट हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। इन दिस सेंटेंस subject is Ram and object is Shyam. Then we will see our reporting verb. Reporting verb क्या है, said है, तो said का कोई भी चेंज नहीं होगा रिपोर्टिंग वर्ब में, आपको said को एज इट इज said ही लिखना है। देन आपका थर्ड स्टेप है रिप्लेस करना है इन्वर्टेड कॉमा को दैट से। तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा, राम सेड श्याम दैट। ना फोर्थ स्टेप आपको चेंज करना है प्रोनाउन, आई की जगह क्या लगाना है, ही। देखो ये सेंटेंस में सिर्फ एक ही प्रोनाउन है और वो क्या है, आई। और आई तो सब्जेक्ट कौन है इस सेंटेंस में, राम, और राम क्या है, बॉय, इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे, ही का। रिमेंबर स्टूडेंट, आपको सब्जेक्ट को देख कर ही प्रोनाउन को चेंज करना है। गॉट इट। अगर गर्ल हो तो आपको शी लिखना है, अगर बॉय हो तो आपको ही लिखना है। नाउ सी चेंज ऑफ टेंस। तो हमारा वर्ड क्या है, स्टार्टेड। ये कौन से फॉर्म में है, इन पास्ट फॉर्म। तो हम इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो ये क्या बन जाएगा, हैड स्टार्टेड। नाउ सी सम टाइम इन सेंटेंस हमारे जो 6 स्टेप है मीन्स अपडेट टाइम स्पेसिफिक वर्ड वो नहीं होती है, तो हम उसको क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। तो हमारा जो फाइनल सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, राम सेड श्याम दैट ही हैड स्टार्टेड अ न्यू जॉब। स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस 2 examples. Let's see the one more example. They said we will plan a picnic tomorrow. So first identification, subject they. There is no object in this sentence. Then change of reporting verb, said. Said का आपको पता है, said का said ही होगा। Then replace inverted comma with that. आपको इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करने का है किससे, दैट से। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, दे सेड दैट। देन नेक्स्ट चेंज ऑफ प्रोनाउन, वी विल बी चेंज बाय प्रोनाउन दे। देन चेंज ऑफ टेंस, विल, आपको पता है विल बी चेंज बाय द वुड इन इनडायरेक्ट स्पीच। एंड चेंज ऑफ टाइम वर्ड्स क्या होगा, टुमारो का क्या होगा, द नेक्स्ट डे। सो हमारा फाइनल आउटकम क्या होगा ये सेंटेंस का, दे सेड दैट दे वुड प्लान अ पिकनिक द नेक्स्ट डे। इट इज इनडायरेक्ट स्पीच। सी वन मोर एग्जाम्पल,
The teacher said to the students, the sun rises in the east. See first identification. Subject is teacher and object is students. Change of reporting verb क्या होगा? Said to will be changed by the told and inverted comma replace होगा with that. So हमारा सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा तक क्या होगा? द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट. देन देखो ये जो सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस में और ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है. तो जब सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ बताया जाता है, सच बताया जाता है, तो हम सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे, उसको एज इट इज़ ही लिखेंगे. इट इज़ रूल. सो हमारा फाइनल सेंटेंस क्या बनेगा? द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट. रिमेंबर स्टूडेंट, जब भी सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट का यूज़ होगा तो आपको सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करना है, आपको वो सेंटेंस एज इट इज़ ही लिखना है जो भी टेंस में हो. सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.